السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلال کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آل سامر. پتمس درسس مز پڑھو اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کریو تمام اہل ایمانن امہ کتھ ہند حکم کہ اخ أکۍ سُنٛد مال گژھِ نہٕ ناجٲیز طریقو یُن کھٮ۪نہٕ کینٛہہ یا ہڑپ کرنہٕ کینٛہہ. اور امہ پتہٕ آیو تجارتٕچ فضٲیل اور تجارتٕچ یۄس زن جائز آسن سُہ تہِ آیو تمیُک بحث تہِ آیو. اور اس کے بعد ولا تقتلوا انفسکم کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو. اس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی شامل ہے اور خودکشی یہ زن چھ تمیک معاملات بہرحال اس کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا. ازیچ یہ زن آئے مبارکہ چھ بہرحال یہ بھی اللہ کے احکام میں سے چند احکام پر مشتمل ہے. بہرحال گۄڈٕ کر بہٕ امہِ آیے مبارکُک لفظی ترجم تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ بیان. اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن اس کی مختصر ترجمانی آپ کے سامنے آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تجتنبوا اگر تم اجتناب کرتے رہو اگر تم بچتے رہو کبائر بڑے گناہوں سے. کبائر چھ جمعک سیگ اور یہ جمع ہے کبیرتن کی. کبیرتن گو بڑا کبائر گو یعنی بڑے گناہ. اگر تم بچتے رہو اگر تم اجتناب کرتے رہو بڑے گناہوں سے ما تنہون عنہ جن سے آپ کو روکا گیا ہے یعنی جن سے آپ کو قرآن اور حدیث میں روکا گیا ہے. نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف کرتے رہیں گے. وندخلکم مدخلا کریما اور ہم آپ کو انتہائی عزت والی جگہ میں پہنچائیں گے. یہ چھ آئے مبارکک لفظی ترجم. بہرحال امہ لفظی ترجم ست آسہِ تۄہہِ فکر تورمت کہ یتھ آئے مبارکہس مز اللہ تبارک و تعالیٰ ہن یم زن گناہن ہز خباست یا گناہن ہز یس زن نحوست سۄ چھ بیان آمٕژ کرنہٕ. اللہ تبارک و تعالیٰ سند رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ سند غفاری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یتھ آئے مبارکس مز تمام انسان مخاطب کرت فرماون کہ اگر تہ بڑیو گناہ نش روزیو بچن پن پان بچائیو بڑیو گناہ نش تو رہا سوال جو چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں چاہے دانستن یا نادانستن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے گناہوں کو اپنی رحمت کے طفیل میں معاف کرے گا. اور اس کی وجہ سے یعنی بڑے گناہوں کی وجہ سے بچنے کی وجہ سے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت والی جگہ یعنی جنت میں آپ کو داخل کرے گا. بہرحال یاد گژھِ تھاؤن قرآن پاکس مجھ جائے جائے آمت مسلمانن گناہو نش بچنچ تاکید کرنے. بلکہ اکیچ قرآن پاکس مز اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ بچو ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی. یعنی ظاہری گناہوں سے مراد وہ گناہ ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ بچائے چوری زنا کسی پر تہمت لگانا یا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ تو ہو گئے ظاہری گناہ. باطنی گناہوں سے مراد اللہ بچائے حسد کبر غرور گھمنڈ بہرحال یم گئے کم گناہ باطنی گناہ. اور ان دونوں گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچنے کی تاکید کی ہے. البتہ یت آئے مبارکہ مجھ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانن پہ اخ خاص رحمت پن کرمز. سر رحمت یہ کہ اگر ہسا تہ بڑیو گناہ نش روزیو بچن تو چھوٹے گناہ جو دانستن یا نادانستن آپ سے ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف کرے گا. بہرحال یاد گژھِ تھاؤن اصل میں تو کوئی گناہ نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے بلکہ گناہ گناہ ہے. یہ گئی گناہچ مثال جیسے ایک عالم نے گناہ کی مثال ایک انگارے سے دی ہے. انگارہ یزن نار تنگل یزن
चाहे ये लकुट अस्तन या बोड़, बहरहाल दोनों इंसान को जलाने के लिए काफ़ी हैं। बल्कि अक्सर बोजन खबरन मज कि मामूली कोई चिंगारी रह जाती है किसी शड में या किसी मकान में, तो वो मामूली चिंगारी पूरे उस मकान को और कभी कभी पूरे इलाके को ही भस्म कर देती है। बहरहाल यह मिसाल गुनाहन हिंस कि गुनाह चाहे बड़ा हो या छोटा, बहरहाल असल में तो गुनाह कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, बल्कि गुनाह तो अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह की नाफरमानी चाहे थोड़ी सी हो या बहुत ज्यादा हो, वो तो बहरहाल अल्लाह की नाफरमानी है। इथे पार्ट आलमन गुनाह मिसाल दिन सांप से, चाहे सांप छोटा हो या बड़ा, बहरहाल कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई इंसान सांप को हाथ में उठाए। कह इंसान वन कि वाल यह लकुट सरफ बह तुलन यह अतस मज या बह थवन चंदस मज, नहीं, बल्कि उसको ये पूरा एहसास है चाहे सांप बड़ा हो या छोटा ये मुझे डस लेगा और इससे मेरी जिंदगी को नुकसान पहुंचने वाला है। युस हकीकी मुसलमान आसन छ, युस वाकई मोमिन आसन छ, वो गुनाहों से ऐसे ही बचता है जैसे इंसान अंगारे से बचता है, जैसे इंसान सांप से बचता है। उस वक्त ये नहीं सोचता है कि ये सांप बड़ा है या छोटा, ये अंगारा बड़ा है या छोटा, बल्कि हदीस में आमद फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि एक फाजिर और फासिक और काफिर की निशानी ऐसी है, मिसाल ऐसी है कि जब वो गुनाह करता है तो वो समझता है कि उसके इस नाक पर एक मक्खी थी, ऐसे करके उसने उड़ा दिया, यानी एमिशनी बोर्ड कथा बासन। लेकिन मूमिन जो होता है उसकी मिसाल ऐसी है, जब वो गुनाह करता है उसे लगता है कि जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे आ गया, यानी तमिश बासन जन तुम पहाड़ तल और ये पहाड़ अभी आकर मुझ पर गिरेगा। युसा अमिस फिक्र आसन कमिच गुनाहच। इसीलिए यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमावन यथ मज कि अगर तुम बड़े गुनाह निश रूजू बचन। बहरहाल मैंने पहले कहा कि असल में कोई गुनाह ना बड़ा है ना छोटा, बल्कि सभी गुनाह ये गुनाह ही है, ये अल्लाह की नाफरमानी है। एक आलमन बेहतरीन आकात वहीमस उन्होंने लिखा है, अगर कोई आदमी किसी वक्त के बादशाह की थोड़ी सी गुस्ताखी करे, बहरहाल उसके दरबार में जाकर उसकी थोड़ी सी गुस्ताखी करे या उसकी सल्तनत में बादशाह की थोड़ी सी गुस्ताखी करे, अब बादशाह उसको पकड़कर लाए अपने सामने हाजिर करे, क्या वो ये उज़्र पेश कर सकता है कि बादशाह सलामत मैंने तो आपकी थोड़ी सी बेहुरमती या थोड़ी सी बेअदबी की थी? नहीं। क्यों? क्योंकि बादशाह को इख्तियार है, थोड़ी सी बेअदबी पर भी, थोड़ी सी बेहुरमती पर भी वो इसको पूरी पूरी सजा दे सकता है। हाँ, अगर कोई बादशाह ऐसा रहम दिल हो, वो उसके बड़े गुनाह को भी क्या कर सकता है, बड़ी यजन बड़ी से बड़ी अगर उसकी बेहुरमती भी की हो उसको माफ, लेकिन यह नहीं कह सकता है कि वो मैंने छोटी सी नाफरमानी की थी इसलिए बादशाह सलामत ये कौन सी बड़ी बात है। मगर बादशाह अगर चाहे तो छोटी सी गलती पर भी इसको पकड़। यही मिसाल एक बंदे की और अल्लाह की है। अगर बंदे को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने सामने खड़ा करे और कहे कि आपने छोटा गुनाह क्यों किया, क्या बंदा ये कह सकता है कि या अल्लाह ये छोटा गुनाह तो आपकी छोटी सी नाफरमानी थी, मैंने तो आपकी थोड़ी सी नाफरमानी की? अल्लाह चाहे तो इस थोड़ी सी नाफरमानी पर भी उसको सजा दे सकता है। इसीलिए उलमा ने लिखा है, हकीकत में कोई गुनाह छोटा और बड़ा नहीं होता है। असल में तो इंसान को अल्लाह की अजमतों की तरफ नजर होनी चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि मैं किस अजीम और बड़े खुदा की नाफरमानी करता हूं। अलबत्ता हदीसस मज और कुरानस मज क्या गुनाह तुम जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में या रसूलुल्लाह ने हदीस में वईदें सुनाई हैं। मिसाल के तौर पर कुरान पाकस में आमद, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुम वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखी मैतन फकरिहतुमू। ए ईमान वालों, एक दूसरे की गैबत मत किया करो। ये गैबत करना ऐसा ही है, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? गीबत का मतलब क्या है? ये ऐसे गुनाह जिस पर कुरान में वईद सुनाई गई है, कुरान में इसके बारे में सजा सुनाई गई है, तो इस फुकहा ने ऐसे गुनाहों को क्या कहा है? ये कबीरा गुनाह है, बड़े गुनाह है। इथे पर सूदस मुतलिक कुरान पाकन वनमुत कि ये तो ऐसा ही है जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला फअज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह, या अल्लाह के साथ जंग करने के बराबर। वो ऐसे गुनाह जिनके बारे में कुरान में वईद बताई गई है। या क्या गुनाह तुम यमन मजन हदीसस में आमद वईद बोजनान, सजा बोजनान। तो बहरहाल इन गुनाहों को फुकहा ने तकसीम किया है किन गुनाहों में? कबाइर में, कबीरा गुनाहों में। और ऐसे गुनाह जिनकी मजम्मत कुरान और हदीस में आई है मगर उनके लिए वईद नहीं सुनाई गई है या सजा नहीं सुनाई गई है,
उन गुनाहों को फुकहा ने डिफरेंशिएट किया है किस में कि ये हंसा गए कुम गुना सगीरा गुना। मगर याद रखिए फिर से एक बार फिर मैं बताता हूं, ये तो फुकहा ने इसकी तकसीम कबीरा और सगीरा की है, वरना अल्लाह के यहाँ तो कबीरा और सगीरा असल में नहीं है कोई, क्योंकि अल्लाह चाहे तो बड़े से बड़े गुनाह को भी अपनी रहमत से माफ कर सकता है, छोटे से छोटे गुनाह पर भी पकड़ कर सकता है और उस पर जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में पहुंचा सकता है। आपने सुना होगा खबर हदीस बूझमत, एक बूढ़ी खातून थी, उन्होंने एक बिल्ली को घर में बांध के रखा था, उनको वक्त पर न तो खाना देती थी न तो उनको वक्त पर देखभाल करती थी उनकी, इसकी वजह से उस औरत को जहन्नम में जलना पड़ा। यह हदीस का मफहूम है। बज़ाहिर तो ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं था, मगर चूंकि अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक के साथ ये बुरा सलूक था, तो इतनी सी नाफरमानी पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कहां पहुंचाया? जहन्नम में। इसीलिए बड़ा और छोटा युजन छुनक हुई। अलबत्ता हदीसस मुझ क्या गुनाह आमद यमन सर कबीरा आमद वन और कहन सगीरा, तो उन्हीं के बारे में ये आयत नाजिल हुई है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करन कि मैंने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफत किया और पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वन तो हज सारे खुद बोड़ गुनाह कुछ है। तो बहरहाल हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ जबकि उसने आपको पैदा किया है। यानी तो ठहराया खुदा सहित का शरीक, ये कि जन हकीकत है कि उसने आपको पैदा किया है। ये गुनाह ये सारे खुद बोलो। और याद रखिए तमाम गुनाहों में, कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह कौन है? शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। और कुरान में इसके बारे में आया है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही, अल्लाह हरगिज उस शख्स को माफ नहीं करेगा जो अल्लाह के साथ किसी को क्या ठहराता है? वयगफिरु मा दून ज़ालिक, बाकी जिन गुनाहों को शिर्क को छोड़कर अल्लाह चाहे तो उनको माफ भी, मगर शिर्क के बारे में अल्लाह का कैटेगोरिक फैसला है कि आप करना अल्लाह तबारक व तआला तौबा व मगफिरत किया। अच्छा, तो इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमान, मैं को अर्ज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तू अपनी औलाद को इस वजह से कत्ल करे कि वो कल आपके खाने में आपके साथ शरीक हो। यानी यथ वनान फैमिली प्लानिंग वनान या अपने बच्चों को मारना इस वजह से फक्र फाका के डर से, तो हदीस में इसको दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा गुनाह ये शुमार किया गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमान कि म्यासक और अर्ज या रसूलुल्लाह इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन है? तो इसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तू अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करे। ये सारे खुद बोल रहे, हाँ जिना तो सबसे बड़ा गुनाह है, मगर इसकी कुबाहत, इसकी शनायत में इससे भी बढ़कर इजाफा होता है जब ये फैल किसके साथ किया जाए? अपने इस हमसाया की बीवी के साथ। 12-21 हदीस मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे क्या बड़ी बड़ी गुनाह, उनमें सबसे अव्वल दर्जे पर फिर से शिर्क को बताया। इसके बाद फरमाया कि नमाज को टालना या नमाज को तर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, इसी तरह से या वालिदैन की नाफरमानी के बाद किसी पाक दामन औरत या खातून पर तोहमत लगाना, मैदानी जहाज से फिरार करना, यानी मैदानी जहाज मैदानी कारजारस में आसी जंगो जदल, अब दुश्मन के साथ मारका हो और ये पीछे पीठ फेर कर भाग जाए, ये भी रसूलुल्लाह ने फरमाया ये कौन सा गुनाह है? कबीरा गुनाह है। इतने पर फरमाया रसूलुल्लाह झूठ और झूठी गवाही देना यह भी कबीरा गुनाहों में से बड़ा गुनाह है। बहरहाल यम हदीसन में मुख्तलिफ औकातन पे मुख्तलिफ गुनाह आमद बयान करना। अगर किसी को मजीद तफसील देखनी हो तो उलमा ने इस पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। हाफिज अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने एक किताब लिखी है अल कबाइर के नाम से, उसमें उन्होंने लगभग 700 गुनाह ऐसे दर्ज किए हैं जिनको हदीस और कुरान की रूह से कबाइर गिना गया है, यानी बड़ गुनाह। बहरहाल ये आप उसूल याद रखिए, कबीरा गुनाह यमजन ये तौबा के बगैर माफ नहीं होते हैं, यानी कबीरा गुनाह यमजन तौबा बगैर कबूल ये माफ गसन। और ये भी आप ज़हन में रखिए, ऐसा कोई गुनाह नहीं है कि इसकी तौबा की जाए और फिर ये माफ ना हो जाए, हत्ता कि शिर्क से बड़ा कोई गुनाह। लेकिन अगर इंसान शिर्क से भी तौबा करे,
अल्लाह के दरबार में आजिज़ी और इंकिसारी के साथ इससे भी तौबा करे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, कि जो शख्स गुनाहों से तौबा करता है वो ऐसे ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं हो, यंता आसिदे गुनाह कोरमुती। तो इसलिए मायूस गए अल्लाह ताला से रहमत निश गसुन, अलबत्ता सिर्फ ये इस बात की देर है कि इंसान अल्लाह की तरफ क्या करे, रुजू करे और पलटे। अलबत्ता याद है कबीरा गुनाहों का ये उसूल है कि तौबा के बगैर ये माफ, किसी से जिना सरजद हो गया, ये तौबा के बगैर माफ नहीं होगा, और अगर हुकूमत को इस बात की पता चले तो इस पर हद भी जारी होगी। अच्छा, इसी तरह से किसी ने चोरी की है, तौबा के बगैर माफ नहीं होगी। जिना किया है तो तौबा के बगैर माफ नहीं होगा। कोई कबीरा गुनाह किया है, शिर्क किया है, यम कैसे तौबा बगैर माफ। और वो कबीरा गुनाह जिनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, और ये हुकूकुल इबाद से जो भी गुनाह ताल्लुक रखते हैं वो तो बड़े ही गुनाह हैं। तुम तो कैसे ने तोता माफ किया, योता तौबा ही करना, और जब तक कि हक वाले से हक या तो माफ ना किया जाए या तो उसको हक वापस किया जाए। ये तो उसूल है किन का, इन बड़े गुनाहों का। तो इसी के बारे में अल्लाह ताला फरमान, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु, अगर तुम इन बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाते रहो, बाज रहो, मा तुनहौना अन्हु, जिनसे आपको रोका गया, यानी जिनसे आपको कुरान और हदीस में रोका गया है। अल्लाह ताला फरमान, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो रहे छोटे गुनाह, सय्यात कहते हैं छोटे गुनाहों को, तो इनको हम अपनी रहमत के तुफैल से खुद माफ करेंगे। यानी लकट गुनाह इनका उसूल है कि ये तौबा के बगैर भी माफ। लेकिन किस इंसान को पता है कि कौन सा गुनाह छोटा है, इसलिए हर गुनाह पर इंसान को क्या करते रहना चाहिए, तौबा करते रहना चाहिए। बल्कि हदीस में आमद यम जन लकट लकट गुनाह ये तो आम नेकियों से भी दूर हो जाते हैं। कुरान पाकस में इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि इंसान के नेक अमाल जो हैं ये छोटे छोटे गुनाहों को खुद से क्या करते हैं, माफ करते हैं। बल्कि हदीस में आमद फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब एक इंसान वुजू करता है और कामिल वुजू करता है, कामिल वुजू का मतलब है कि बेहतरीन अंदाज से हाथ साफ करता है, नाड़ी से छालन असल पटनस, और सर्दी और गर्मी के बावजूद एहतिमाम के साथ वुजू करता है, फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। हत्ता कि हदीस में आमद कि इसके गुनाह इन नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। गो ये तो मगर किन के गुनाहों के बारे में, छोटे गुनाहों के। ये तंते हदीस में आमद कि फलों काम करने से गुनाह माफ गसन, इनसे मुराद कबाइर गुनाह नहीं होते हैं, इनसे मुराद कौन गुनाह होते हैं, सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह होते हैं। इतने पर फरमाओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये वुजू करता है तो वुजू से इसके गुनाह धुल जाते हैं। जब ये मस्जिद की तरफ आता है, हर कदम पर इससे एक नेकी लिखी जाती है इसके नाम अमाल में, और एक गुनाह इससे मिटाया जाता है। गो सगीरा गुनाह जब मस्जिद में आता है, जितनी देर ये मस्जिद में बैठा रहता है तो इसके सगीरा गुनाह जड़ते रहते हैं, इसके सगीरा गुनाह माफ होते रहते हैं। इधर पर फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये मशहूर रिवायत सुनी होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो, एक जुम्मा से लेकर दूसरे जुम्मा तक, आप जुम्मा से 20 जुम्मा क्या बनन तलाफी, यानी जब एक इंसान जुम्मा की नमाज पढ़ता है, जो भी गुनाह इसने इस हफ्ते में किए होते हैं तो ये सब अल्लाह तबारक व तआला इस जुम्मा की रहमत से मगर कौन से गुनाह, सगीरा गुनाह। इधर पढ़न हदीस में आमद कि एक रमजान से लेकर दूसरे रमजान तक, तो ये रमजान तमाम गुनाहों का कफारा बनता है, मगर याद रखिए फिर से छोटे गुनाह। इधर पढ़न हदीस में आमद ये लाख इंसान हज करन और कामिल हज करता है, उसमें कोई फिस्को फजूर की बात नहीं करता है, तो ये ऐसा है जैसे इसकी माँ ने इसको आज ही जना हो। मगर इससे भी मुराद कौन से गुनाह इससे माफ होते हैं, गो नेक अमालो सूची पान कुम गुनाह गसन माफ। लेकिन बड़े गुनाह जो हैं ये बगैर तौबा के माफ नहीं होते हैं। तो इसी रहमत की तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु, अगर आप बड़े गुनाहों से एहतराज करते रहे, बचते रहें, तो जिनसे आपको रोका गया है कुरान और हदीस में, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, हम जो आपके छोटे गुनाह हैं उनको माफ करते रहेंगे, उनको आपसे दूर करते रहेंगे। अच्छा, व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और इन गुनाहों के बचने की वजह से हम आपको कहां पर दाखिल करेंगे, हम आपको करीम जगह में यानी इज्जत वाली जगह में दाखिल करेंगे, जिससे मुराद कौन है, जन्नत। तो इस आयत की रूह से पता चलता है जन्नत में जाने के लिए सबसे पहली शर्त कौन सी है, गुनाहों से बचना। बल्कि उलमा ने लिखा है, उलमा की लिखमत, अगर एक इंसान के पास ऐसा मौका है कि वो नेकी भी कर सकता है
اور اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچا سکتا ہے. اب پہلے کیا کرے گا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلے اس کو اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہوگا. امس بچاؤ کم سے یہ تو ایسی ہی بات ہے. کہاں شخص امس دوا پھول اس کو دوائی لینی ہے امس بل امس بیمار مگر یور سے تیوت کھانا چیز جیسے کوئی سانپ یا بچھو یا کوئی جنگلی جانور اس کو کاٹ کھانے کے لیے آ رہا ہے. بتاؤ پہلے دوائی لے گا یا پہلے انتظام کرے گا اس بچھو یا اس سانپ سے بچنے کے لیے؟ پہلے تو یہ سانپ اور بچھو سے بچنے کے لیے انتظام کرے, بعد میں جا کر یہ نیکی کا کام یا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا اس بیماری سے. تو اسی لیے اکس حدیث میں فرماؤ رسول اللہ صلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرن دپان اک ساتھ اکس مجلس مز بہت تو رسول اللہ نے فرمایا من یاتی ہؤلاء ھذ الکلمات, کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے گا؟ پورے مجموعے پر سناٹا چھا گیا, کہیں ووت تھوت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمان بہ ووتھس پتہ تھوت ہمت کرت میں ون یا رسول اللہ میں لے سکتا ہوں یہ آئے میں ون حظ. تو رسول اللہ فرمان کہ آپ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیو میون اتھ پنن دست مبارکن مز یعنی اتھن مز کور اور پھر مجھے 5 چیزیں گنائی یعنی 5 نصیحت کرے. ان میں سے سب سے پہلی نصیحت تھی اتق المحارم تکن اعبد الناس, یعنی گناہوں سے بچو آپ اول درجے کے متقی اور پرہیزگار انسان بنو گے. گو متقی تو پرہیزگار اور اللہ کا چہیتا بندہ بننے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. بہرحال ضمن ون بہ کت آج ہمارے یہ سون دنیا آج اس میں ہم نیکیاں تو کرتے ہیں مگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں سے بچنے کی زیادہ کوشش نہیں کرتے ہیں. اچھی نماز تی پڑھن, ہم تلاوت بھی کرتے ہیں, ہم ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں گناہ یہ موبائل پر گندی گندی تصویریں یا گندی گندی فلمیں بھی دیکھتے ہیں. تو یہ اللہ کا چہیتا بندہ کبھی نہیں بن سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک طرف سے تو روحانیت اور اپنی روحانیت یہ زن وہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر دوسری طرف سے ہم اس روحانیت کو بالکل یہ زن ختم کرنے کے بھی در پہ پڑتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہی ہے, آپ ٹینکی آپ گھرس مز اس پر ہم نے ایک نلکا لگایا ہے جس سے پانی اس ٹینکی میں جمع ہوتا ہے. اب بتائیے اگر یہ ٹینکی صحیح سالم ہے تو یہ نلکا کبھی اس کو بھر دے گا؟ بالکل بھر دے گا, ایک لٹی یہ پورا بھر. مگر اگر ہم نے اس ٹینکی کو نیچے سے بھی ایک نلکا لگایا یم سے آپ جس سپیڈ سے اوپر پانی آ رہا ہے اسی سپیڈ سے نیچے سے پانی بھی نکل رہا ہے, بتاؤ کیا قیامت تک یہ ٹینکی کبھی بھر جائے گی؟ کبھی نہیں. یہی مثال ہمارے دلوں کی ہے. ہم اللہ کی معرفت نمازوں کے ذریعے, زکوٰۃ دینے کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, ذکر و اذکار کے ذریعے اس میں اللہ کے نور اور اللہ کی معرفت کو بھرتے ہیں مگر سیدھے ہم نے اس میں سوراخ بھی کیا ہوا ہے. اچھا آپ سوراخ تو تھومت کرت وہاں سے گندی تصویریں بھی دیکھیں گے, وہاں سے لوگوں کی غیبتیں بھی کریں گے, وہاں سے ہم یہ زنچ لوگوں کی عزتیں بھی اچھالیں گے. ایک طرف سے ہم وہاں سے اس کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دوسری طرف سے ہم نے اس میں سوراخ کیا ہوا. بتاؤ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا نور جمع ہو سکتا ہے, اللہ کی معرفت جمع ہو سکتی ہے؟ اسی لیے سب سے زیادہ اس دن اہتمام گناہ نش کرنک. آخری بات آج کے درس کی, انسان جو گناہ کرن علماء نے لکھا ہے کچھ وجوہات کی بنا پر. کون سے وجوہات؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ شاید مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. یم سات لکن برو اعلان یا گناہ کرن, اللہ بچائے یہاں پر لوگوں کا مجموعہ ہے, کیا لوگوں کے سامنے کوئی چوری کرے گا؟ نہیں. لوگوں کے سامنے کوئی گناہ کا کام کرے گا؟ نہیں. بلکہ عام طور پر گناہ یور کرنے کم سات لوگوں کی نظروں سے دور. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان یہ باسن کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, چلو گناہ کرتے ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ افعلوا ما شئتم, آپ کرو جو کچھ تم کرتے ہو, انہو سمیع بصیر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ وہ سننے والا بھی ہے اور بصیر, دیکھنے والا بھی ہے. اگر انسان یہ ذہن میں روز کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھنے والا ہے تو کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ دوسری بات دیم کت انسان دھوکہ لگان انسان دپان اول مے سن کہیں تنہائی میں وہ گناہ کرتا ہے اکثر, جب کوئی ساتھ ہوتا ہے تو گناہ نہیں کرتا ہے. بلکہ علماء نے یہ نسخہ یہ بھی لکھا ہے, اگر انسان کن سات شیطان وسوس ترائی کمیک گنہک تو علماء نے لکھا ہے پہلے تو اعوذ باللہ پڑھے, اللہ سے دعا کرے, اگر اس سے بھی زور نہیں چلتا ہے وہ باہر نکل جائے اور کسی دوست کو یا کسی شخص کو تلاش کرے تاکہ اس کی وجہ سے وہ اس گناہ سے لکن برو عام طور پر گناہ کر انسان تو عام طور پر انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اینما کنتم وہو معکم, جہاں کہیں بھی ہو اللہ آپ کے ساتھ. وہ اگر انسان زیرو تصور کہ میں جہاں پر بھی ہوں اللہ مجھے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟
त्रेयम युस जन अमिस तसव्वुर या दोख इंसान दोख कोई देखने वाला या मेरा कहीं रिकॉर्ड कहाँ होता है मे ये रिकॉर्ड कर सीसी कैमरा ये सीसी कैमरा कहें वल बह कर गुना बह कर ये कुछ जाए दफ्तर में सीसी कैमरा लगित ये बैंकस में कुछ सीसी कैमरा लगित इंसान वहां पर एहतियात करता है क्यों वो देखता है कि ओहो सीसी कैमरा लगित मैं आका हरकत में आका एक्शन ये नोट गसन लेकिन जब गुनाह तन्हाई में करता है ये जबरदस्त वाल कुछ नोट कर कौन देखता है मगर अल्लाह कुरान में कहता है किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून हमने आपके साथ किरामन कातिबीन लगा रखे हैं यालमून मा तफअलून वो सब कुछ वो नोट भी करते हैं और जानते भी हैं जो कुछ आप करते हो। अच्छा फिर इंसान को यह भी धोखा होता है कि बकर दारी दरवाज बंद बकर सोरे क्या आईगोट कुठिस मज अब अकेले मैं मोबाइल लेकर हूं नंगी तस्वीरें देखूंगा गंदी फिल्में देखूंगा कौन मुझे देखता है कौन मेरा ये हाल कल कुछ दी गवाही मगर अल्लाह तबारक व तआला फरमान यौम इदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका अवहल कल कयामत के दिन ये जमीन खबरें उगलेगी कौन सी खबरें उगलेगी यौम इदिन तुहद्दिस अखबारा बिअन्न रब्बका अवहल तो ये अपने रब के हुक्म से हर कुछ अहवाल वहां से बयान करेगी कि मुझ पर इस बंदे ने क्या क्या काम किया। क़यामत तक तो हदीस में आमद जहां बंदे ने नमाज पढ़ी होगी वो जमीन का टुकड़ा गवाही देगा कि ए अल्लाह इसने यहाँ पर नेक काम किया है। जहां पर गुनाह किया होगा तो अगर तौबा नहीं की होगी तो वो जमीन का टुकड़ा भी गवाही कल देगा कि ए अल्लाह इसने फलानी जगह पर मेरी पीठ पर ये गुनाह हाँ अलबत्ता तौबा अगर की होगी तो अल्लाह तबारक व तआला इस रिकॉर्ड को सारे को क्या करता है इरेज करता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से मांगो दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक इनायत करे और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस इकराम और इज्जत वाली जगह में पहुंचाए। अल्लाह तबारक व तआला दीन कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।